sir. When we discuss about fundamental rights, right to equality is primarily the most important of all the fundamental rights. So when we discuss about Article 14, it should not be discussed in isolation. It have to be read from Article 14 onwards up till Article 18, in which Article 14 gives the general basic definition of what is equality, that the state should not discriminate and everybody should have equal protection of law and equality before law. These are the two basic postulates of equality. Then we have Article 15 and 16, which are inherently linked with Article 14 because they are exceptions to Article 14, because they talk about selective discrimination or positive discrimination. So the exception of Article 14 itself is present in Article 15 and Article 16. So these three articles are the most important and primary article of right to equality, 14, 15 and 16. They cannot be read in isolation. And then Article 17 is there, which basically penalizes the practice of untouchability. And because of Article 17, many laws were drafted and adopted and passed by the Parliament, like Civil Rights Prevention of Disabilities Act or Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Disabilities Act, and many other acts were passed to curb this menace of untouchability. Then we have Article 18, that is abolition of titles. Like in the British period, the people, or many people, it happened that those who were loyal to Britishers, they were given certain titles like Khan Bahadur, Rai. Yes. So these were some titles given because the persons or the Indian citizens who were showing loyalty and serving the British Empire. So it was taken as a mark of great prestige and respect, but all of it is abolished now, except military titles. It is an exception for the service of the nation. So now basically we have to go through Article 14, 15 and 16. So in the last class we discussed about Article 14, and there were two basic postulates of Article 14, equality before law and equal protection of law. यानी कि कानून के समक्ष बराबरी और कानून से बराबर की प्रोटेक्शन. अब संरक्षण क्या कहेंगे, संरक्षणा क्या कहेंगे इसको हिंदी में, प्रोटेक्शन को संरक्षण, कानून का बराबर संरक्षण. हाँ, संरक्षण. तो कानून के सामने समता और कानून का बराबर संरक्षण, ये हर व्यक्ति को मिलना है भारत के टेरिटरी के अंदर, ये आर्टिकल 14 कहता है. 15, 16 उसका एक्सेप्शन है. तो अब 14, 15, 16 को हमें साथ में लेके चलना है. तो वी डिस्कस्ड फ्यू केस लॉ. तो जब भी आपसे राइट टू इक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है कि समान परिस्थितियों में जो लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार. जो पहले के समान नहीं है उनके बारे में नहीं कहा गया, एक ब्रॉड प्रिंसिपल दिया गया है. अब इसका एक्सेप्शन तो आपको ये मिल जाएगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे है तो उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं. यहाँ तक कि जो सांसद हैं उनको भी प्रिविलेज है, उन पर डिफेमेशन लागू नहीं होता, वो संसद के पटल पे कुछ भी बोल सकते हैं डेमोक्रेसी के लिए, ताकि वो बिना डरे बिना किसी उसके बोल सकें. तो इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है. तो इक्वालिटी अमंग्स्ट इक्वल, फिर आप वो एग्जांपल दे सकते हैं जो हमने उस दिन डिस्कस किया. उसके बाद 3-4 केस लॉज हमने डिस्कस किए थे जहाँ पे बताया गया कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं. अब जैसे मैंने एक केस लॉ उस दिन डिस्कस किया था, इट वाज नरगिस मिर्जा वर्सेस एयर इंडिया या वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 1970 के दशक 1982 के आसपास का ये केस है. ईयर देख लेना आप, मैंने लिखवाया है. उसमें क्या था कि जो भी एयर होस्टेस भर्ती होती थी उनको ये कहा गया था कि आपने प्रेग्नेंट नहीं होना है या इतने दिनों तो शादी नहीं करनी. इस किस्म की कंडीशन जाली थी. और वो कंडीशंस कुछ ऐसी थी, वो एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा, थोड़ा 19-20 हो सकता है. वो कंडीशन ऐसी डाली थी कि जिसकी वजह से एयर होस्टेज में फर्क हो गया था, जो मैरिड थी और जो अनमैरिड थी. तो जो मैरिड थी उनके ऊपर लेबिलिटी ज़्यादा आ रही थी. तो कोर्ट ने कहा कि ये ठीक तरीका नहीं है. और एक और केस था स्टेट ऑफ हरियाणा का, जिसमें यह कहा गया था कि जिन भी बच्चों ने रूरल एरियाज से अपनी 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है तो उनको रिजर्वेशन देंगे. इसको भी मना कर दिया.
तो कोर्ट ये कहता है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉजिक दी है वो ये लॉजिक दी है कि बेशक राइट टू इक्वलिटी होनी चाहिए, लेकिन सरकमस्टांस अगर किसी के अलग है तो आप उसको जस्टिफाई करेंगे 2-3 पैमानों पे। सबसे मेन जो पैमाना था इनका, दैट वाज द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। तो आर्टिकल 14 पे जब आर्टिकल लिखेंगे पूरा 15 मार्क का, तो 15-16 भी मेंशन करेंगे, तो फिर आप हाईलाइट करके लिखेंगे कि टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है नकुल कि रीजनेबल तो सब्जेक्टिव टर्म है ना। अब मेरे लिए जो रीजनेबल है शायद आपके लिए वो रीजनेबल ना हो, आपके लिए जो रीजनेबल है शायद वो किसी और के लिए रीजनेबल हो। और इससे बड़ा फर्क आ जाता है इंसान के एज की वजह से, इंसान के जेंडर की वजह से, इंसान के क्लास कास्ट की वजह से, एथनिसिटी की वजह से, एजुकेशन लेवल की वजह से, एक्सपोजर लेवल की वजह से, अपने खुद के टेम्परामेंट की वजह से। सब्जेक्टिविटी है, इसमें बड़ा चेंज होता रहता है कि क्या रीजनेबल है क्या नहीं है। इसी बात की तो लड़ाई होती है कानूनी तौर पे, ये समता वाली जो बात है। तो अब टेस्ट उन्होंने पहला टेस्ट क्या निकाला, टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। और ये पहला टेस्ट है, ये आखिरी टेस्ट है लॉ का। लॉ में किसी भी चीज को हम जायज तभी मानते हैं, वैलिड तभी मानेंगे जब वो रीजनेबल हो। लॉ का मतलब ही होता है, लॉ क्या है, बेसिकली कॉमन सेंस है। तो यू हैव टू एक्ट रीजनेबली। पूरा नेग्लिजेंस का जो इशू उठता है कि वेदर दैट पर्सन वाज नेग्लिजेंट और नॉट, या रेकलेस था या नहीं था। अब इन दोनों चीजों में फर्क है, नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस में। मैंने पहले भी बताया, मैं किसी में भी आपको बताऊंगा। नेग्लिजेंस नेगेटिव एक्ट है, रेकलेसनेस एक पॉजिटिव एक्ट है। तो ये सारी चीजें आती हैं सामने। अच्छा, तो इन्होंने ये जो रीजनेबलनेस का टेस्ट है, ये सबसे पहला टेस्ट है। दूसरी चीज, रीजनेबल को कुछ मानदंडों पर नापने के लिए, टू गेज रीजनेबलनेस ऑन अ स्टैंडर्ड, दे क्रिएटेड 2 stipulations. And what were those 2 stipulations? Those were, first of all, there should be a intelligible differentia. अगर इन्होंने 2 क्लास में बांटा, एक शादीशुदा एयर होस्टेस और एक, हालांकि इनको ज्यादा उम्र की ही एयर होस्टेस रखनी चाहिए ताकि हवा में भी यात्रियों को माँ का प्यार मिल सके। थोड़ी एज होगी तो हाँ अच्छे से जोक कर रहा था, मजाक कर रहा था। अच्छा आगे सुनो, माँ से ज्यादा कौन सेवा कर सकता है, तो इस तरीके से होना चाहिए। कोई नर्स को सिस्टर कहते हैं तो एयर होस्टेस को मदर कहें, मम्मी कहें, तो इट वाज अ जोक। अब इसका हाँ, तो क्या मन लगाने के लिए रखते हैं आप क्या कह रहे हो? बिल्कुल मन लगा रहे हैं सर, इसलिए रखते हैं ठीक है। तो सर मन लगा कई दफा तो नाराजगी हो जाती है, अगर कई दफा बहुत ही ज्यादा मॉडर्न कह लो, या बहुत ज्यादा मॉडर्न या तेज है ना, अगर कोई बहुत ही 7 स्टार हॉस्पिटल में कोई नर्स और आप उसे सिस्टर कह दो तो बुरा मान जाता है, और अगर हिंदी में बहन जी कह दिया तो और बुरा मान जाएगी। अच्छा, तो बात क्या हो रही थी? हाँ, बात कि जो इन्होंने मानदंड निकाले वो ये निकाला, सबसे पहला उनका ये था कहना इसमें कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएट किया गया है मैरिड एयर होस्टेस और अनमैरिड एयर होस्टेस में, या रूरल एरिया से जिन बच्चों ने 8 तक की शिक्षा प्राप्त की है और जो बच्चे अर्बन एरिया से शिक्षा प्राप्त करके आते हैं, अगर इनका ये रीजनेबल इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन है कि वाकई कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं, शादी करने की वजह से वो सेवा नहीं कर पा रहे ढंग से, कुछ इस तरह की बातें प्रॉपर निकल के आ रही हैं, तो उसको वो मानते हैं कि ये रीजनेबल डिफरेंशिएशन है। या जैसे कि मैंने इंटेलिजेंट डिफरेंशिएशन है, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था कि मैच चल रहा है क्रिकेट का, वो देख नहीं पा रहा है, तो उनके कद के हिसाब से उनको नीचे पटरा लगाते गए ताकि वो देखें। तो अगर ये जो इंटेलिजिबल था कि एक 4 फुट का आदमी 2 फुट की जरूरत है, एक 5 फुट का है तो 1 फुट की जरूरत है, 5.5 फुट वाले को आधे फुट की जरूरत है, तो इस हिसाब से इन्होंने एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन किया है कि पर्पस सॉल्व हो रहा है, तो फिर ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का टेस्ट पास करते हैं। दूसरा क्या है, नेक्सस भी होना चाहिए। नेक्सस मतलब कोई लिंक होना चाहिए, गठजोड़ जिसे हम हिंदी में कहेंगे। अगर पटरिया लगा के इतना ऊंचा कर दिया कि वो काम पूरा हो जा रहा है ताकि वो भी मैच देख सकें, तो पहला क्लॉज क्या था, दे आर कंप्लीटिंग द टेस्ट ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड सेकंड स्टिपुलेशन ऑफ नेक्सस। अगर ये 2 चीजें पूरी हो जाती हैं तो कोर्ट उसको रीजनेबल मानेगा उस डिस्क्रिमिनेशन को। ये पैमाना है कोर्ट का, और इस पे चाहे आप 10 केस लॉ लिख दो अपनी मर्जी से पढ़ के। नेक्सस क्या होता है सर? नेक्सस का मैं समझाता हूँ। नेक्सस का मतलब गठजोड़, गठजोड़। अब गठजोड़ का मतलब क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पॉलिटिशियंस का और कई दफा माफिया का आपस में एक नेक्सस है।
नेक्सस मतलब गठजोड़, आपस में कोई इनका एक साथ काम चल रहा हो, टेंडम, मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, उसको नेक्सस का है। अगर हमारे पटरा लगाने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है, जिस चीज को हम सॉल्व करना चाह रहे थे, तो फिर ये ठीक है। अब आपने ये कह दिया 8वीं तक के लोगों को अब चल 8वीं को छोड़ दो, उस पर विरोधाभास हो सकता है। अगर आप ये कह दो कि शादी करते ही जो है नौकरी से निकाल देना चाहिए फौरन एयर होस्टेस को, तो आप ये देखोगे पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं, तो आपने देखा कि कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। तो उसको ही नेक्सस कहते हैं कि अगर हमने फर्क किया तो वो फर्क करके हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं, उसकी प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने ऑफलाइन क्लास, आपने ऑनलाइन क्लास लेनी है लेकिन घर आके लेना है, ठीक है, अब घर आ मतलब कॉलेज से आके लेना है, तो अब वो ये देखना पड़ेगा कि इनको कॉलेज बुलाया जा रहा है तो किसी चीज की प्राप्ति थी, मतलब इनको कोरोना से बचाना है, तो क्या वो लक्ष्य प्राप्त हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो फिर वो गलत, नहीं तो वो ठीक है। इस तरीके से जैसे किसी टीचर को कोविड हो गया, भाई आप घर से क्लास ले लीजिए, और जिनको नहीं हुआ पाई, या कई दफ़ा जैसे बॉर्डर बंद चल रहा है, मान लो दिल्ली का, कोई टीचर बॉर्डर के उस पार से आ रहा है हरियाणा से, तो भाई आप आजकल ऑनलाइन ले लो, और जो दिल्ली के हैं या जो नोएडा वाले हैं आप आ जाओ। तो इसमें इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन क्यों किया है कि वो नहीं आ पाएगा, और पर्पस क्या है, बच्चों को क्लास मिले। तो ये डिफरेंस के बाद जो बच्चों को क्लास मिल रही है ना, ये नेक्सस पूरा कर रहा है, ये भी होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि भेदभाव कर दिया कि भाई आप हरियाणा से आ रहे हो आप मत आओ, लेकिन उसके ना आओ घर से लो। अगर ऐसा होता है क्योंकि घर पे भी नेट ना होता तो पर्पस फेल हो जाता। इसको कहते हैं नेक्सस, कि ये फर्क करने से हमारा जो बेसिक मोटिव है वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चीज होती है। आप जब ये भी समझा देंगे ये सारा कुछ लिख के, उसके बाद आप बताइए नकुल। सर जैसे सर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, मतलब जो भी हमने डिफरेंशिएट किया, जो भी डिसीजन लिया, प्लस उसका जो भी हमारा पर्पस था, हाँ, अब जो इक्वल्स टू करके जो भी इसका रिजल्ट आया वो नेक्सस है, वो गठजोड़ करके जो रिजल्ट आया वो नेक्सस कहलाया। बिल्कुल उसने मतलब इंटेलिजिबल डिफरेंशिया प्लस जो भी पर्पस था उसको। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप देखोगे, बिल्कुल सही समझा आपने, रिजर्वेशन के केसेस देखेंगे, जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन के केसेस, प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन के केसेस, तो अब वो कहेंगे कि सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय पर्पस है। अब उस सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए हम लोगों में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको रिजर्वेशन देंगे, इसको नहीं देंगे, इसको इतना देंगे, इसको इतना देंगे। तो ये फर्क करने से वाकई सामाजिक न्याय हो रहा है कि नहीं, अगर ये आप साबित कर देते हो सब्जेक्टिवली कि हो रहा है तो फिर ठीक है, और आप नहीं साबित कर पा रहे तो फिर नहीं हो। ये है, इसी पे सारा खेल। इस पे अब आप चाहो 2 केस मैंने लिखाए हैं, आप देखो केस क्या लिखा है, केस तो पूरे लिखे हुए हैं, आप खुद 8-10 केस पढ़ो, उसमें से जो अच्छे लगे अगर खुद क्रिएट करना चाहते हो, और बेस्ट 4-5 केस आप उसमें डाल दो, और लेटेस्ट 1-8 केस डाल दो खुद के नोट्स में, ज्यादा नहीं, 4 से 5 केस बस बहुत है आर्टिकल 14 के। अब सुनो, लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल आपसे पूछता है कि केवल इक्वालिटी के बारे में बताइए कि इक्वालिटी क्या है, तो जब केवल इक्वालिटी के बारे में पूछता है तो अभी तक का मेरी नज़र में कोई चीज़ फाइनल नहीं होती है, एक से एक बेहतर चीज़ आती जाती है। तो बेहतर चीज़ ये है, अब बेहतर चीज़ों में देखो क्या है, जैसे कि अब पूछे इक्वालिटी को डिफाइन करो, तो उन्होंने ईपी रोयप्पा के जजमेंट में, कृष्ण अय्यर जी, भगवती जी वगैरह थे, इन्होंने, हाँ वही थे मेरे हिसाब से, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में इन्होंने इक्वालिटी को डिफाइन करते हुए लिखा है, इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस, इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर sworn enemies of each other. Arbitrariness and equality are sworn enemies of each other, and anything which is arbitrary is unequal, and anything which is arbitrary, मैं लिख दूं कि डिक्टेट कर दूं, डिक्टेट कर देता हूं चलो, एंड एनी, सर लिख रहा हूं सर, मैं क्रक्स बता रहा हूं, मैं वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिख पा रहा, क्रक्स बता रहा हूं, इससे समझ में आ जाएगा। एनीथिंग विच इज आर्बिट्रेरी इज अनइक्वल, जो भी चीज मनमानी होती है वो अपने आप में समानता के विरुद्ध है, दैट इज अनइक्वल। एनीथिंग विच इज आर्बिट्रेरी इज अनइक्वल। ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु,
यस सर। ठीक है। ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब देखें इसके आगे अगर हम सर ऐसे सर लिख सकते हैं ना, ये डिफाइन करो बिल्कुल अपने वर्ड्स में भी, जजमेंट में जो भी कहा है बिल्कुल आप अपने वर्ड। देखो मैं अब आपको तरीका बताता हूँ कैसे करना है। जुडिशियल सर्विस हो या कोई भी हो, आपको जो भी लगते हैं कि लैंडमार्क केसेस हैं, आप केसेस की एक अलग से रजिस्टर बना लीजिए। अगर आपको जैसे जुडिशियल सर्विस या इसका शौक है, उससे क्या होगा, आपने अलग रजिस्टर बना लिया। यस सर। जो भी केस आता है, नंबर इधर एक तरफ नंबर 1 2 3, यहाँ पे केस का टाइटल मतलब केस का नाम, और उसके साइड में लिखना है कि किस सब्जेक्ट से ये रिलेट करता है। कई दफा वो इंटरमिंगल करेंगे, संविधान से भी करेंगे, आईपीसी से भी करेंगे, या कंपनी लॉ से भी। तो आप लिखो कॉन्स्टिट्यूशन, केस का नाम लिखा, अगर जज कोई इंपॉर्टेंट हो जज का नाम लिख लिया एक हाथ, ज्यादा नहीं, जज बड़े जजमेंट है। उसके बाद साइड में आप लिखो कि क्या हेल्ड किया गया, छोटा सा बिल्कुल एक लाइन, एक इसका एक तैयार कर लो। इससे क्या होगा, आपको याद रहेंगे हमेशा इंपॉर्टेंट जजमेंट टिप्स पे। इस तरीके से करिए। तो और एक और बात क्या कही थी इन्होंने, एक चीज और इन्होंने वर्ड यूज किया था, एंटीथीसिस। जब हम सोशल साइंसेस की बातें करते हैं तो हम कहते हैं किसी ने थीसिस दी, अपने एक आइडिया दिया, और किसी दूसरे ने उसकी एंटीथीसिस दी। तो ये जब दोनों विचारों का आपस में एक संलग्न होंगे और आपस में जब ये भिड़ेंगे दोनों विचार, एक तरफ थीसिस आएगा और एक तरफ एंटीथीसिस आएगा, फिर उसमें से निकलता है एक सिंथेसिस। थीसिस एंटीथीसिस टकराती है, सिंथेसिस निकल के आता है। और ये अगर आप पढ़ोगे, क्या कहते हैं, जब ये मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, वेदों की बात का दौर है, बहुत बड़े थिंकर थे साउथ इंडिया के यहाँ के, उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि पहले थीसिस होगी, एंटीथीसिस होगी, फिर उनके मिलने से एक चीज निकलती है, उसे सिंथेसिस कहते हैं। उसे बाद में कार्ल मार्क्स ने भी आगे बताया है। तो उसी तरीके से इन्होंने कहा है, जस्टिस ने, हाँ मुझे वो निकल रहा है, उनका एक टर्म है, पर्टिकुलर टर्म है हिंदी का, जो ये इक्विवेलेंट है इस वर्ड के, जो उन्होंने कहा था, मतलब वो फिलॉसफी पे बात की थी उन्होंने। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, इन्होंने कह दिया कि इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर एंटीथीसिस टू ईच अदर। एंटीथीसिस का वर्ड यूज किया है, तो आप अपने आंसर में एंटीथीसिस के वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं कि असमानता और मनमानी, ये समानता और मनमानी ये आपस में एंटीथीसिस है एक दूसरे के। ये और एक बात और कही उन्होंने, बड़ा अच्छा वर्ड था, मैं कोशिश करता हूँ याद करने की। इक्वालिटी इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। इक्वालिटी इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, इट कैन नॉट बी क्रिप्ड, इज अ डायनेमिक। ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इक्वालिटी इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। ये लिखो पहले तो, आर्बिट्रेरीनेस एंड इक्वालिटी आर एंटीथीसिस टू ईच अदर। Arbitrariness and antithesis, arbitrariness and equality are antithesis to each other. Arbitrariness and equality are antithesis to each other. Yes sir. ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखिए, yes. इसके बाद लिखिए, they said that, जस्टिस का नाम भी लिखवा दीजिए, मतलब ये इम्पोर्टेंट। इन्होंने दिया नहीं, मेरे हिसाब से ये कृष्ण अय्यर जी हैं, कृष्ण अय्यर और भगवती दोनों हैं इसमें, एक बार चेक कर लेना, ठीक है? वहां पे साइड में लिख लो जस्टिस कृष्ण अय्यर और भगवती, लेकिन क्रॉस चेक करना लिखने से पहले। इन्होंने कहा था, किस केस का, कौन सा केस था सर ये? हाँ, केस का कुछ, केस का क्या नाम था सर? ईपी रोयप्पा। ईपी रोयप्पा उसी में 14 की आत्मा कंप्लीट नहीं होगी अगर ईपी रोयप्पा नहीं डालोगे। ईपी रोयप्पा इसमें बताते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लिख लो चाहे तो, इनके जो वो शब्द हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है इक्वालिटी इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। इक्वालिटी इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। इक्वालिटी इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। Yes sir. Equality is a dynamic concept, and it cannot be, yes sir, and it cannot be cribbed,
CRIBBED, cribbed, Yes. Yes, sir. comma cabined, Yes, sir. cabined, 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 कैबिन से बना है cabined, मतलब उसको छोटा करके तोड़ अच्छा, के yes, मरोड़ sir. के किसी कैबिन में नहीं डाल सकते. It cannot be cribbed, cabined and confined, and confined. Yes, sir. जी. अब हम देखते हैं ये साहब क्या लग रहा है मुझे, एक सेकंड, या भगवती जस्टिस. सर इस केस के लिए सर इतना लिखना ही बहुत है सर. बहुत है. इक्वालिटी आर्बिट्रेरीनेस आर सोन एनिमीज ऑफ ईच अदर. और फिर सर ये डायनामिक वाला. इसमें तीनों महान लोग हैं. कृष्ण अय्यर साहब भी हैं, भगवती भी हैं, चंद्रचूड़ साहब भी, तीनों है. VR कृष्ण अय्यर, PN भगवती और चंद्रचूड़ साहब तीनों है. 1974 का है. 1974 का है. भगवती प्रसाद. नहीं, भगवती प्रसाद नहीं, PN भगवती, PN भगवती. अच्छा सर. PN भगवती और VR कृष्ण अय्यर और जस्टिस चंद्रचूड़. यस सर. YV चंद्रचूड़. ये YV चंद्रचूड़, DM चंद्रचूड़ है. ये वाले चंद्रचूड़ से पहले के हैं. अब मुझे डाउट होता है कि इनके फादर तो नहीं. नहीं सर इनका फादर ही है वो सर. ये DY चंद्रचूड़ है ना. ये आपके जो है ये DY चंद्रचूड़ है शायद. अच्छा, और ये YV है. वो शायद YV चंद्रचूड़ है. ये इनके बेटे हैं ना. ये फादर और सन ही. हाँ सर. मैंने हर जगह है भाई ये. ये बॉलीवुड तक सीमित नहीं है. अच्छा, बॉलीवुड में तो ऐसा है, कुछ लोगों को छोड़ दो, जिसको पिटना होता है ना बॉलीवुड में भी पिट जाता है. अब ये लगाओ, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन से बड़ा फिल्म स्टार कौन होगा? पिट गया. यस सर. और वो बेचारा वो कैसा था, क्या नाम है उसका, पंकज कपूर कैसा था, उसका लड़का शाहिद कपूर चल गया. हाँ सर. वो तो पूरा हीरो भी नहीं था. चल गया. हाँ सर. इस तरीके के कितने एग्जाम्पल हैं ऐसे जो बाहर से आए. अब मैं एग्जाम्पल आपको दूं, ये क्या नाम है इसका, ये जो अभी गैंग ऑफ वासेपुर आई थी, गैंग ऑफ वासेपुर के बाद अभी जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी, नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आई है उसमें जो सर मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी त्रिपाठी, कौवा बिरयानी की वाली जो रोल मिला था, इसके बाद नवाजुद्दीन को चोर का रोल मिला था, मुन्ना भाई भी. आसानी हो जाती है बॉलीवुड में आने के लिए, लेकिन अगर पब्लिक पसंद नहीं करेगी तो चल नहीं सकेगा. लेकिन इसमें तो जस्टिस में तो कोई चक्कर ही नहीं. इलेक्शन में भी कम से कम वोट से पब्लिक हटा कोई स्क्रूटनी भी तो नहीं है इसमें तो, है ना. इलेक्शन में तो फिर भी ये है कि चलो हो सकता है हार जाए, वोट में हार जाए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है. एक सेकंड, मैं एग्जैक्ट कोटेशन लिखा दूं, बड़ा अच्छा कोटेशन है. देखो क्या था एग्जैक्टली. इक्वालिटी इज अ डायनामिक कंसेप्ट विद मेनी एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस एंड इट कैन नॉट बी क्रिप्ड, कैबाइंड एंड कॉन्फाइंड.
इतना ठीक है। इसके बाद लिखिए विद इन ट्रेडिशनल एंड डॉक्ट्रिनायर लिमिट्स, विद इन ट्रेडिशनल एंड डॉक्ट्रिनायर लिमिट्स। इनकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी कृष्णा जी। Equality is a dynamic concept with many aspects and dimensions, and it cannot be cribbed, cabined, and confined within traditional and doctrinaire limits. बाकी सब मैंने लिखवा दिए जी। with many aspects within traditional and doctrinaire limits. Equality is a dynamic concept. Yes sir, वो yes sir. With many aspects. With many aspects. A-S-P-E-C-T-S. Yes sir. Aspects and dimensions. And it cannot be cribbed, cabined, and confined. Yes sir. ठीक है। आर्टिकल 14 आपका हुआ यहाँ पे पूरा। मैं आर्टिकल 15 पे आ रहा हूँ, इसलिए मैंने 14 दोबारा बताया कि देखो कई दफ़ा क्या होता है कि व्हेन यू आर अलोन तो मेरे लिए आसान होता है पढ़ाना कई दफ़ा, फिर और बच्चे होते हैं तो कई उनको, अब जैसे अब एक बात बताओ, मैंने इतनी दफ़ा स्टेट पढ़ा लिया लेकिन कई दफ़ा बच्चों को पता ही नहीं चलता कि स्टेट क्या है, लॉ क्या है, नहीं बता पाते। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार मैं ही ढंग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या बात है। अजीब सा हो जाता है। तो लेकिन मुझे लगता है तुम्हें तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, खुद भी तुम पढ़ते ही हो। आर्टिकल 12, 13, 14 ही होगा मोटे तौर पे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इस पे आर्टिकल 15 के ऊपर। आर्टिकल 15 और 16 क्या है, मैं थोड़ा सा वो बताऊँ आपको। आर्टिकल 15, 16 एक तरीके से एक्सेप्शन है ताकि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का रास्ता खोल दिया जाए, क्योंकि अगर सिर्फ आर्टिकल 14 अगर होता तो किसी का ना रिजर्वेशन होता, चाहे वो कास्ट के लिए हो, चाहे क्लास के हिसाब से हो, चाहे जेंडर के हिसाब से हो, कुछ नहीं होता। तो उसको प्रॉपर चैनलाइज करने के लिए उसके एक्सेप्शंस हैं, या जिसको हिंदी में हम कहते हैं उपवाद हैं, ये आर्टिकल 15 और 16। आर्टिकल 15 नॉर्मल की बात करता है, नॉर्मल डिस्कोर्स की बात करता है, और आर्टिकल 16 जो है वो आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। आर्टिकल 15 आर्टिकल 14 को एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है, कैसे वो डिस्क्रिमिनेशन को मना करता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, ऑन द ग्राउंड ऑफ कलर, इन चीज़ों के लिए वो मना कर रहा है, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर, ओनली ऑन दिस ग्राउंड। इसके साथ एडिशनल ग्राउंड भी लगाओ तो वो आ जाता है डोमिसाइल वाला, ओनली ऑन दिस ग्राउंड नहीं होगा। डोमिसाइल में ये थोड़ी कहते हैं आप वहीं के हो, डोमिसाइल में कहते हैं आप 10 साल की जगह रह चुके हो, 5 साल रह चुके हो। अब वो थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए, तो ये चीज़ है। और 15 के बाद ये 14 को सपोर्ट करी, 15 आया, फिर 15 में कुछ थोड़े से उपवाद एक्सेप्शंस बता दिए। जैसे 15 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लॉज 3, और फिर आपका है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 डायरेक्टली पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ना तो भेदभाव करना है और कहीं कहीं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना है कुछ क्लासेस के लिए। और 15 और क्लॉज 3 जो है वो स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन का राइट देता है, 15 क्लॉज 3। तो जो जेंडर के आधार पर रिजर्वेशन की बात होती है उसका जो स्रोत है दैट इज आर्टिकल 15, और जो एम्प्लॉयमेंट पे कास्ट के आधार पे बात होती है, कास्ट को भी क्लास माना है। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा ज्यूरिस्टिक बहस का मुद्दा है कि कास्ट और क्लास क्या एक चीज है या कास्ट और क्लास अलग चीज है, क्योंकि भारत के संदर्भ में हम कास्ट देखते हैं, या एक तो जगह और कहीं यमन के कुछ एरिया में थोड़ा सा कास्ट सिस्टम पाया गया है, बहुत हल्का फुल्का इंडिया की तरह, तो लैटिन अमेरिका में थोड़ा बहुत देखा गया है, वरना ये पेक्युलर है। जाति का जो सिस्टम है, वर्ण अवस्था, ये इंडिया का, भारत का एक पेक्युलर है। अब ये क्लास इक्वल है या नहीं है, भाई क्लास तो इंसान की बदलती है, कास्ट नहीं बदलती। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि कास्ट में जो काम करना था, अब भाई दलित समाज के लोग भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े लेवल पे जा रहे हैं, तो अब क्लास कास्ट में फ्लूइडिटी कितनी है, अपने आप में यूरिस्प्रूडेंशियल इशू है बहुत बड़ा कि आखिर है क्या। तो आर्टिकल 16 पर जब हम आते हैं तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 का क्लॉज 3, 16 का क्लॉज 4, और क्लॉज 4 के साथ 2 अमेंडमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, 16 क्लॉज 4A और 4B। अब 4A 4B क्या है? 4 बात करता है रिजर्वेशंस के बारे में, शेड्यूल कास्ट वगैरह के बारे में,
यस सर। अब 4A 4B बात करता है प्रमोशंस में रिजर्वेशन के बारे में, प्रमोशंस में रिजर्वेशन के बारे में। फिर 4B आपकी बात करता है कि अगर मान लो कोई सीट्स रुक गई तो वो कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, ये है आपका 4B। तो इंपॉर्टेंट क्या निकला, 15 का क्लॉज 3, 16 का 4, 4A 4B। इंपॉर्टेंट तो पूरा का पूरा आर्टिकल ही कि संविधान का पार्ट है, लेकिन उसके भी जो बेस बहस के मुद्दे हैं, 4A पे भी केस लॉ है, 4B पे भी केस लॉ है, 4 पे भी कई केस लॉ है। केस लॉ आता है, उसको हटाने के लिए अमेंडमेंट आता है, क्योंकि कई दफा केस लॉ में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कई दफा रिजर्वेशन के कुछ इशू को कहा है कि ये ठीक नहीं है, तो फिर अमेंडमेंट आ जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस तरीके यस सर। तो अभी हमारा 14 कंप्लीट हो गया विद केस लॉज। 15 और 16 जो हमारा बचा, 15 और 16, तो 15 एंड 16 में जो चीजें बचती हैं वो ये है कि हमें इसका ऊपर ऊपर पता लग गया क्या है। अब इनमें से इसका प्रोविजन मैं बताता हूँ आपको, फिर 2-2, 3-3 केस लॉ करेंगे, इसका भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन जितना भी हो सके आप नए केस लॉ निकालने की कोशिश करिए। लैंडमार्क तो लिख दिया आपने, नया कुछ निकल जाए, बिल्कुल नया कुछ अगर मिल जाए आपको रिजर्वेशन के ऊपर, कोई किसी हाई कोर्ट का भी जजमेंट मिल जाए तो उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए और मुझसे भी शेयर करिए, ठीक। अब मैं एक बार 15 और 16 पढ़ते हैं पहले, क्योंकि बहुत डीप बातें हैं एक एक वर्ड में, उसके बाद फिर हम केस लॉ पे आएंगे। आर्टिकल 15 मैं शेयर करूं स्क्रीन पे, चलो अगली क्लास में पढ़ूंगा ना प्रोविजंस के साथ, केस लॉ के साथ, तब स्क्रीन पे खोलूंगा। आज अभी ऐसे ही बताता हूँ, क्योंकि कल वो बच्चियां आएंगी दोनों, तो फिर बताना ही पड़ेगा, तो अभी मैं ऐसे जल्दी जल्दी बताता हूँ ताकि कंप्लीट हो। आर्टिकल 15, पहले 14 की एक बार रीडिंग। इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई, मतलब फिर फंडामेंटल राइट किसके विरुद्ध है, स्टेट के विरुद्ध है, स्टेट को गारंटी करना है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एनी पर्सन कह दिया, इसमें सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों आ गए, ठीक है, मतलब नागरिक भी आ गए और जो नागरिक नहीं है, एलियन है, वो भी आ गए। पहली चीज ये चीजें आपको नोट करनी है, अपने संविधान में आप ये लिख लीजिए। और दो तरह की बातें कर दी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कुछ यूएस के लॉ से लिया गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कुछ इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से लिया, दोनों का एमलगेमेशन है आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 15 हमारा क्या कहता है, इसके वर्ड सुनिए। 15 क्लॉज 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म, रेस, नस्ल, कास्ट, जाति, सेक्स यानी कि उसका लिंग, और जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ, इन आधार पे भेदभाव करना वर्जित है, प्रोहिबिटेड है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है, जो आगे भी आएगा 70 साल के बाद कोर्ट के सामने, वो आएगा ओनली ऑफ, मतलब धर्म के आधार पर नहीं कर सकते, जाति के आधार पर नहीं कर सकते, पैदा होने के स्थान के आधार पर नहीं कर सकते, बट ओनली अगर इनके साथ कोई और मुद्दा है तो कर सकते हैं। अब जैसे जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब सुप्रीम कोर्ट को टाइम आएगा, वो सुनेंगे, तो जो सरकार का पक्ष होगा वो कहेगा कि ये इसका वायलेशन नहीं है, क्योंकि ओनली कहा गया है और ये चीजें और है, तो ये ओनली बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। क्लॉज 2 पे आइए, नो सिटीजन। अब नो सिटीजन अपने आप में दिखा रहा है कि ये आर्टिकल 15 जो है, दिस इज फॉर आवर सिटीजन, ये देश के, क्यों सर उसमें सर ओनली में अगर उसको और लेंगे तो इसमें सर रिलीजन तो दे ही रखा है ना, रिलीजन दे रखा है, लेकिन वो अगर ये कहना चाहे, अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो कैसे इंटरप्रेट करेगा। मान लो वो ये कहें कि ऐसा है कि चलो धर्म तो एक बात है, धर्म के अलावा इस धर्म के लोगों के साथ ये हो रहा है, इस धर्म के लोगों के साथ नहीं हो रहा है, तो इस बात पे हम भेदभाव कर रहे हैं। वो अब इसको सुप्रीम कोर्ट कितना मानता है कितना नहीं मानता, अब ये तो उनके इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। इसीलिए कहते हैं कि संविधान आपका, मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या गलत है क्या सही है, ये तो ओपन टू डिबेट है। लेकिन बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि अगर आपके पास सबसे अच्छा संविधान भी है लेकिन चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वो भी फेल हो जाएगा, और खराब भी होगा तो आप चलाइए फिर भी चला लोगे।
जी अब जैसे अब उसमें कई सारी चीजें हैं ना, सिर्फ सीए की बात नहीं है। अब आप 370 का भी इशू लो, टेम्परेरी प्रोविजन लिखा हुआ है, अब वो खिंच रहा था रिजर्वेशन 10 ईयर्स के लिए। मैं मतलब अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने वाले पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के अलावा जुडिशरी का क्या इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि जुडिशरी का काम ही कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का है। तो अब वो कैसे, अच्छा इंटरप्रेट करना अलग बात है, उसको प्रॉपर पेश करना है, यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू गिव रीजन। वो कहते हैं ना, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी क्लियरली एंड मैनिफेस्टली शोन टू बी डन। अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो आप वो शो करो कि जस्टिफाइड है इस हिसाब से, तो ये भी करना होगा। अब दूसरा जो क्लॉज है हमारा, वो भी कह रहा है सिटीजन के पक्ष में, एलियन के लिए नहीं है दूसरा वाला क्लॉज। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू शॉप में जाने के लिए, पब्लिक रेस्टोरेंट में, ये वो। वरना लोग बताते, पहले हमने तो नहीं देखा, पहले सुनते थे कि शायद आज़ादी से पहले कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पर रेलवे स्टेशनों पे पानी भी रखा होता था कि भाई इससे जाति के लोग पियेंगे, इससे जाति के लोग पियेंगे। सुनने में आता है, आई डोंट नो कि इसमें क्या है, होता होगा पहले, क्योंकि वाटर कूलर तो लगे नहीं होते होंगे ऐसे वाले। और नथिंग इन दिस आर्टिकल, हाँ, nothing in this article shall prevent the parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government or any local authority within state or union territory any requirement as to residence। मतलब ये डोमिसाइल की बात कर दी इन्होंने, जो मैंने आपको पहले बताया कि डोमिसाइल की बात, लेकिन वो भी रीजनेबल होना चाहिए। ये नहीं कि बोलेंगे 20 साल आके रहो, तो 20 साल लंबा टाइम होता, हो सकता है 5 साल बोले, 7 साल बोले, 10 साल बोले, कुछ रख दे। अब आगे आइए, 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, दैट इज नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। तो अगर ये वाली बात जो क्लॉज 4 इंपॉर्टेंट है, तो भाई सबसे पहले इन चीजों का एम्पेरिकल स्टडी होनी चाहिए कि कौन सी जाति कितने परसेंट है, क्या है और कितना रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि अब अगर आप देखोगे तो गुजरात में जो पटेल हैं वो ठीक ठाक है। गुजरात में पटेल की जो अगर तुम इकोनॉमिक सिचुएशन देखोगे तो अच्छी सिचुएशन है, मगर वो कहते हैं कि हमें बीसी में भेज दो। उसी तरीके से मुझे लगता है कि जाट जो है हरियाणा में, तो भाई हरियाणा तो जाटों का ही है। अच्छा, वो कहते हैं कि हमें चाहिए, मुझे इतना डिटेल नॉलेज नहीं है उसके बारे में क्या चक्कर है, वो कहते हैं हमें भी रिजर्वेशन चाहिए वहाँ पे। इसी तरीके से अलग अलग लोग हैं जो कहते हैं कि हमें रिजर्वेशन दो, हमें दो। तो इसका कोई, या तो खत्म ही करो सबके लिए इसको सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन पे लागू कर दो तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। क्योंकि भाई ये बताना कि पटेल गरीब है कि नहीं, जाट गरीब है कि नहीं, मराठा गरीब है कि नहीं, अच्छा मुसलमान गरीब है कि नहीं, भाई ये कैसे पता लगाओगे? सभी खत्म करो या तो ये बड़ा, ये तो सर ये एसआरएस जैसे सर यूपी में, यूपी और बिहार में जैसे यादव की सरकार रही है सबसे ज्यादा। हाँ, यादव की सरकार रही है, तो मुलायम सिंह यादव, तो अभी जैसे यहाँ यादव की सरकार रही है तो यहाँ इनको, हाँ, तो यादव को मिला हुआ है, तो वहाँ वो वही बात करते हैं कि ये राज्य जैसे हरियाणा जाटों का, मराठा, उनको तो हमें भी दो। ये बात वैसे भी तो जरूरत नहीं है, पैसा पर बहुत है। जस्टिफाई करना ये बड़ा मुश्किल है। अब देखो यादव मान लो बैकवर्ड थे पहले, लेकिन पिछले 20-25 साल में वो बहुत तरक्की कर गए। अच्छा, एक बार अगर मिल जाए तो खत्म भी नहीं होता। यादव सर कभी बैकवर्ड नहीं थे। अच्छा, कभी बैकवर्ड, यादव सर कभी बैकवर्ड नहीं थे। चलो आगे आगे जाती है सर, भगवान कृष्ण की जाति मानते हैं। हाँ, नहीं देखो, मैं जो कमेंट कर रहा हूँ ना, जो मैंने पटेल पे कमेंट किया, जाटों पे कमेंट, तो मुझको एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर इंसान कह रहा है कि मुझे ओबीसी में डालो। यस सर, ये सब नौकरी का खेल है, सरकारी नौकरी का बस। हाँ, अब ये हर कोई चाहता है कि वो ओबीसी बन जाए, या अगर बस चलता तो लोग कहते हैं कि हमें एससी भी बना दो, अगर वो चांसेस होते। यस सर, हाँ सर तैयार है सब ठीक है। तो अब ये बड़े इश्यूज हैं, लेकिन ये हकीकत रही है कि अब जैसे दलितों के साथ तो हकीकत रही है कि भेदभाव उनके साथ छुआछूत वाला हुआ है। अब उसमें भी तो कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए ना। मान लो कि 10-20 साल मिल गया, उसके बाद आप ठीक हो गए, नहीं हो गए, तो ये बड़े इश्यूज हैं। अब कई जगहों पे तो अभी भी बड़ा शोषण है दलितों के साथ।
तो ये इतने बड़े मुद्दे हैं कि हम लोग क्या हाँ सर, सॉल्व गाँव करेंगे, में होता है। लोग भी परेशान है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज। और फिर दूसरा ये होता है कि अगर मान लो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन आ जाएगा तो मेरिट तो खराब होगी होगी और बहुत ज़्यादा इश्यूज बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। यस सर। तो फिर 4A फिर 4B आया, मतलब कि फिर आया कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन। अब प्रमोशन में रिजर्वेशन का क्या चक्कर है कि मान लो कि कोई नॉर्मल कोई अनरिजर्व कैटेगरी का 15 साल से जॉब कर रहा है, मेरा जस्ट सीनियर है फॉर एग्जांपल, और मान लो कि मैं रिजर्व कैटेगरी का हूँ, मैं 5 साल में ऊपर चला गया, तो ये तो उसके साथ ऐसा भेदभाव होगा कि वो साथ काम नहीं करना चाहेगा। चलो, गलत कह रहा हूँ ठीक कह रहा हाँ हूँ? सर। बिल्कुल सर। नहीं, अभी सर उत्तराखंड हाई कोर्ट का आया था कुछ टाइम पहले जजमेंट, ऐसा ही प्रमोशन खत्म कर दिया था उन्होंने। हाँ, अब देखो क्या है, हाँ वो यही ठीक था। हाँ अब जी, सुनो, कि प्रमोशन में कोई। एंट्री अगर हमारी हो जाती है थोड़ा बहुत रिजर्वेशन के आधार पे हमें मिल गया तो समझ में आता है, सब कोई किसी को जानता नहीं है, लेकिन साथ काम करके जूनियर अगर सीनियर से आगे चला जाता है तो वो तो डिपार्टमेंट के अंदर लड़ाई होगी। हाँ सर, ये सर गलत चीज है। और तो वही सारी चीजें, तो अब ये हैं बड़े चैलेंजिंग सब्जेक्ट हमारे 14, 15, 16। और फिर 4A 4B। 4A में क्या था कि मान लो जो रिजर्व कैटेगरी की सीट्स हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, अगर वो फुल नहीं होती, फॉर एग्जांपल फुल नहीं होती है, हाँ तो सर। उनपे अगर फुल नहीं हो रही तो उस साल जो नॉन रिजर्व वाले हैं उनको दे दीजिए आप। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा था यहाँ हाँ पे ये सर। चेंज किया गया अमेंडमेंट लाके कि नहीं फुल होती तो कैरी फॉरवर्ड, वो खाली ही रहेंगी, खाली रहेंगे। हाँ सर। अगले साल फिर वो कोई आएगा तो वो लेगा ये। तो ये 4A 4B में आता है। अब इस यस पे हमें जजमेंट्स पढ़ने हैं अलग अलग। और ये तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का चल रहा था, इस पे मैं कुछ केसेस आपको बताऊंगा। जैसे एक केस का नाम लिखिए, चंपैया कन यस दुरिया सर। राजन। ये इंपॉर्टेंट केस है, नाम लिखिए, मैं डिटेल समझाऊंगा धीरे धीरे। सर आर्टिकल किस में सर? आर्टिकल 16 में? हाँ, 15, 16 दोनों साथ सर साथ हैं। आर्टिकल 15 या 16? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ 15, 16 दोनों साथ साथ हैं, इसको अलग से नहीं पढ़ो, अंदर भले लिख देना। 15, 16 के बिना नहीं, 16, 15 के बिना नहीं, यस जब सर। तक कि स्पेसिफिकली पूछा ना जाए। चंपैया। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुरिया राजन। अच्छा, स्टेट ऑफ मद्रास चंपाकम। वर्सेस चंपाकम दुरिया राजन। चंपाकम दुरिया राजन। हाँ, DORAIRAJAN राजन। जैसे नॉर्थ इंडिया में बस मैं 5 मिनट और, क्योंकि दूसरी है ना, इसी को थोड़ा सा लंबा कर दो। जा रही है, मुलाकात हो गई आपकी उनसे? हाँ, हो गई, ओके मैडम, ठीक है। तो चंपैया कन ये स्टेट ऑफ चंपाकम दुरई राजन। चंपाकम CHAMPAKM DORAIRAJAN दुरैया राजन। जैसे नॉर्थ इंडिया में राजा वर्ड यूज होता है तो साउथ में राजन वर्ड यूज करते हैं। हाँ सर, यहाँ सर नाम होते राजन नॉर्थ में। हाँ 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 हाँ, वैसे ही ये केस इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपसे, ये इंपॉर्टेंट केस है इसका 15 का। और एक और बात, अगर आप 15 क्लॉज 3 में पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ अभी कास्ट की बात नहीं की गई है, उसमें वुमेन एंड चिल्ड्रन की बात की गई है। तो सबसे पहला कानून जो चैलेंज हुआ IPC में वो एडल्ट्री के ऊपर था, मतलब मेल 14-15 को लागू लेकर। उसमें यह था कि अगर एडल्ट्री करता है, अगर कोई आदमी एडल्ट्री करता है किसी शादीशुदा औरत से और उसके हस्बैंड को ये पता चल जाता है बिना उसके कन्विंस के वो करता है, तो उस केस में वो आदमी जिसने अवैध संबंध बनाए उस महिला के साथ, उसको सजा है एडल्ट्री में। उस औरत को नहीं है सजा जिसने एडल्ट्री करी। हाँ सर। अब पति ने अगर मार मूर दिया, कुछ कर दिया तो अलग बात है, वरना उस औरत को सजा नहीं है। सजा है किसको? जिसके साथ उसके संबंध थे। तो यस एक सर। केस आया स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस यूसुफ, लिखिए स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस यूसुफ, या यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे।
यूसुफ अब्दुल अजीज। यस सर। यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें इन्होंने क्या किया, सेक्शन 497 को ही चैलेंज कर दिया। सेक्शन 497 को इन्होंने चैलेंज कर दिया। यस सर। इन्होंने सेक्शन 497 को चैलेंज कर दिया कि ये भेदभाव करता है पुरुषों के साथ। तो हालांकि अभी चेंज हो चुका है, अभी कुछ दिन पहले कौन सा जजमेंट आया है नकुल, जिसने 497 को खत्म ही कर दिया? नाम नहीं पता। हाँ सर, खत्म हो गया। शीना वर्सेस करके स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये क्या है सर? देख लूंगा सर मैं। ना अभी लिखो, दोनों अभी लिखो, अभी निकलता हूँ। अब तो सर ना लड़के हो सकती है ना वाइफ हो सकती है। हाँ अच्छा, अभी भी ये नहीं कहा कि दोनों बराबर के गलत हैं, अभी ये कह दिया कि दोनों ठीक है। हाँ सर, बस डाइवोर्स ग्राउंड बन सकता है सर। हाँ डाइवोर्स का ग्राउंड है, बिल्कुल डाइवोर्स का ग्राउंड है। और सिर्फ डाइवोर्स का जोसेफ शाइन है, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2018। जोसेफ शाइन, शाइन की स्पेलिंग क्या सर? SHIN शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 सुप्रीम कोर्ट। इसके सेक्शन 198 क्लॉज 2 CRPC के साथ पढ़ना इसको, जहां पे सैंक्शन की बात दी गई है। सेक्शन 198 क्लॉज 2, जहां पे सैंक्शन की बात की गई, पहले परमिशन लेनी पड़ती। तो ये जो यूसुफ अब्दुल अजीज वाला केस था, इन्होंने कहा कि भाई ये भेदभाव है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 15 क्लॉज 3 का हवाला दिया कि जो कमजोर सेक्शन है, वर्ग हैं, जो कमजोर और शोषित वर्ग हैं समाज के, उनके हक में ये भेदभाव किया जा सकता है। मतलब लेडी को आर्टिकल 14 से एक्सेप्शन है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 3। और यहां तक तो ठीक था, ये भी कह दिया कोर्ट ने कि मैन इज अ सेड्यूसर इन आवर सोसाइटी। मैन इज अ सेड्यूसर, SEDU, यस सर। अब अगर हम देखें तो जो ऋषि मुनियों की तो किसी और ने सेड्यूस करके भंग की तपस्या, अब इन्होंने बता दिया मैन इज अ सेड्यूसर। भाई मेरा मानना है बोथ आर सेड्यूसर्स एंड बोथ कैन बी सेड्यूस्ड। भाई दोनों ही सेड्यूसर भी हो सकते हैं, दोनों सेड्यूस भी किए जा सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा था, तो ये आप लिख सकते हो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में, ठीक है। और ये 497 खत्म ही हो गया बिल्कुल। हाँ 497 खत्म हो चुका, कोई काम का नहीं 497 में। तो आप जब ये लिखेंगे यूसुफ अब्दुल अजीज, तो वहां पर वो भी मेंशन कर दीजिएगा नया केस जोसेफ शाइन वाला। इसके अलावा एक यूएस का केस है, मिलर वर्सेस ओरिगॉन। ओरिगॉन एक स्टेट है यूएस का, MILLER मिलर वर्सेस ओरिगॉन, MILLER मिलर वर्सेस ओरिगॉन। यस सर। ये अमेरिकन कोर्ट का है, जिसमें उन्होंने ये कहा है बेसिकली, क्योंकि महिला जो है, औरत जो है, वो फिजिकल बनावट के वजह से ही कमज़ोर है और उसको डिसएडवांटेज है, इसलिए उसके पक्ष में भेदभाव करना जायज़ है। ठीक भी है कुछ हद तक, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम इस जगह पे होती है कि जहाँ पे बराबरी की बात है, तो कई दफ़ा कहा जाता है कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, तो उनको बराबरी का वो दो, स्थान दो। फिर जब लाइन लगेगी तो औरतें बोलेंगी हमें अलग लाइन दो। तो भाई उस जगह तो आपने फायदा ले लिया लाइन लगा के भी और उधर बराबरी भी। हालांकि कि सामाजिक आधार पे, चाहे शारीरिक रूप से पुरुष जो है वो ज्यादा सक्षम और मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें तो कुदरत का वो है, वी आर नॉट डिनाइंग द फैक्ट। बट इशू क्या है कि कई दफा आप ये देखोगे, खास करके जो एजुकेटेड है बहुत ज्यादा,
अनएजुकेटेड जो है उनकी बात नहीं है, वो बहुत मिसयूज भी कई दफा होता है इसका। 498A का बड़ा मिसयूज है, 498A का बड़ा यस फायदे सर। भी है उनके, मिसयूज भी है। अब ऐसे आपको चाहिए कि चलो हम बिल्कुल बराबरी में हर कुछ बराबर पे काम करेंगे, लेकिन एन मौके पे फिर अब अगर बराबरी है तो फिर मैटरनिटी लीव किस बात की भाई? हाँ सर, ये सर, मेरे नजदीक तो यस बराबरी सर, है। सब कुछ बराबर चाहिए, पर अलग भी चाहिए। मेरे मेरे हिसाब से अगर मेरा ओपिनियन लोगे तो नहीं है बराबर। भाई कैसे बराबर हो सकती है जब यस फिजिकल सर। स्ट्रक्चर में इतना फर्क है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में इतना फर्क है, तो कैसे बराबरी है? बराबरी है ही नहीं। लेकिन वहां बराबरी, अच्छा फिर बराबरी चाहिए तो फिर लाइन भी अलग से चाहिए। तो चार जैसा अभी सर आर्मी का जजमेंट आया था ये मिलिट्री फोर्स का, अब कमीशन में भी सर सब कुछ पूरा चाहिए कि भाई हमें पूरा कमीशन चाहिए, लेकिन बॉर्डर पर खड़े नहीं होंगे, बस डॉक्टरी और इंजीनियरिंग और ये सब काम करेंगे, लेकिन बॉर्डर पर खड़े नहीं होंगे आगे जाकर, तो वो भी काम करो, तो उसमें बराबरी नहीं चाहिए। तो ये जजमेंट आप लिखेंगे 15 क्लॉज 3 में। उसके अलावा इसमें एक और बात कही गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नकुल, सीआरपीसी का जो प्रोविजन 125 से 128 है, 125 से 128 जो प्रोविजन है, इसकी सबसे अच्छी बात जो ये है कि ये तकरीबन भारत की सारी महिलाओं पे, कुछ इलाकों को छोड़ के भारत की सारी महिलाओं पे ये लागू है, विदाउट एनी एक्सेप्शन टू पर्सनल लॉ। चाहे महिला हिंदू हो या महिला मुस्लिम हो या किसी भी धर्म की हो, उसको 125 की 128 तक की प्रोटेक्शन और संरक्षणता मिलती है, मेंटेनेंस उसको मिलेगा। तो इसका भी उन्होंने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट में हाँ सर। अब्दुल अजीज वाले केस में कि वो इसलिए है औरतों के लिए, हस्बैंड के लिए नहीं है, उसमें औरत के लिए है, क्योंकि वो औरत वीक है, तो उसके पक्ष में हम आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के माध्यम से उसके पक्ष में भेदभाव कर सकते हैं। ठीक है। अब तो सर अच्छे से जजमेंट आया था मेंटेनेंस पे हस्बैंड के पक्ष में भी हाल फिलहाल में। हाँ आए आए बिल्कुल आते रहते हैं, थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, अब ऐसा नहीं है थोड़ा कि सा बंद कर हस्बैंड की तरफ आया मतलब। दिया। जुडिशरी कोशिश करती है। यस सर। इसी तरीके से एक केस आप और लिखिए, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। स्टेट ऑफ मैसूर। यस सर। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में कहा गया कि बैकवर्ड क्लासेस में मोर बैकवर्ड और लेस बैकवर्ड में अगर डिस्क्रिमिनेट किया गया है तो ये ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस में अगर मोर बैकवर्ड और लेस बैकवर्ड में अगर क्लासिफाई किया गया है तो ये ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप बिहार का रिजर्वेशन सिस्टम देखोगे तो वहां पर एक कास्ट है ईबीसी। ईबीसी, हाँ सर। ईबीसी मतलब ये ईयू यस वाला सर। नहीं है, ईबीसी ये है एक्सट्रीमली बैकवर्ड। यस सर। ठीक है, तो ईबीसी और ये वाला इसी में ये कहा गया था बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में। और इसी चीज का फायदा हमें पहुंचता है इंदिरा साहनी वाले जजमेंट में। इंदिरा साहनी वाला जजमेंट आप जानते हो, मंडल कमीशन, मंडल कमीशन के यस नाम से सर। फेमस है। तो ये जजमेंट आगे अपहेल्ड हुआ, एक तरीके से मंडल कमीशन की बीच जो है इसने डाली। किस केस ने? बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर इंदिरा में। सर। यस सर। एक ये लिखिए आप, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर और स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकिया दुरिया राजन। इसमें आपको आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 दोनों का जिक्र करना है, पढ़ के बताना है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का वो एक्सेप्शन है, 15(1) का एक्सेप्शन है, 15(3), 15(4). इसमें इन्होंने लिखा है कि इसमें क्या हुआ था, मद्रास गवर्नमेंट ने स्टेट मेडिकल कॉलेज में डिवाइड कर दिया था कास्ट के हिसाब से सीट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल और केवल कास्ट के हिसाब से मत करो, और भी कुछ मेरिट होनी चाहिए आपकी बात में। जो मैंने कहा ना एम्पिरिकल स्टडी वाली बात, वो वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। लेकिन ये जजमेंट है पुराना थोड़ा सा, उसके बाद ये चीजें चेंज होती रही है। तो ये जजमेंट भी लिख लीजिए, स्टेट ऑफ मद्रास तो चंपाकम दुरिया राजन, आर्टिकल 15(1) एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एंड 4। यस सर। अब ये हो गया। अच्छा, एक केस मैंने कल लिखवाया था, अगर आपको याद होगा, हरियाणा में रूरल सीट वाला लिखवाया था ना। यस सर। उस केस का नाम था सुनील जेटली वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सर उसमें मेरा कनेक्शन नहीं था ना उस दिन। हाँ, वो बड़ी प्रॉब्लम थी। लिखो केस का नाम, अब से लिखो, सुनील जेटली वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा।
14, 15, 16 तीनों आपस में मिलते हुए हैं। जब तक कि 16 अलग से ना पूछे तो तीनों भी एक साथ लिख सकते हो आप मिला जुला के, ठीक है। सुनील जेटली और अगर 14 पर ज्यादा फोकस करेगा तो ईपी रोएब पर जरूर लिख के आना। सुनील यस सर। जेटली वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सर ये किस आर्टिकल का है स्पेसिफिकली? 15 क्लॉज 4, 14 और 15 क्लॉज 4। मैंने आपसे कहा ना कि 14 का और 15 का उपवाद जो है वो 15 क्लॉज 4 में है। इसमें यही कहा गया था, सुनील जेटली हाँ वर्सेस सर। हरियाणा, इसमें यही कहा गया था, इसमें यही कहा गया था सुनील जेटली वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में यही कहा गया था कि जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है मेडिकल कॉलेजेस की एंट्री के लिए उन बच्चों को जिन्होंने अपनी 8वीं तक की शिक्षा रूरल क्षेत्रों से प्राप्त की है, ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त की है, उन लोगों को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो रीजनेबल नहीं है, क्योंकि कोई पर्पस नेक्सस सॉल्व नहीं हो रहा है, ये कहा गया था। तो इन्होंने कहा कि भेदभाव आप जरूर करिए, यस सर। लेकिन भेदभाव करने के लिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए 15 क्लास 4 में या 15 क्लॉज 3 में आपके पास कोई रीजनेबल इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए, ये कहा था जजमेंट में। और आप चाहो तो 5-6 लाइन में इसको अंग्रेजी में लिखिए। इट वॉज हेल्ड दैट, हर चीज को आपको, जो मैंने टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, रीजनेबल नेक्सेस, ये जो मैंने 3 मानदंड बताए हैं आपको टेस्ट करने के लिए, इनके हिसाब से ही आपको चलना है। इसमें लिखिए इट वॉज हेल्ड दैट, यस सर। it was held that the reservation of seats, it was held that the reservation of seats, सर सुनील जेटली वाले में है ना? हाँ सुनील जेटली वाले में बिल्कुल। It was held that the reservation of seats for admission to MBBS, यस सर। oblique BDS, BDS, for students who received education, यस सर। for students who received education in rural areas from class 1 to 8th, from class 1 to 8th, was held to be invalid because it was wholly irrational and arbitrary, wholly irrational and arbitrary। जो हमने पहले बात की कि जो चीज आर्बिट्रेरी है वो इक्वालिटी के खिलाफ है। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल 15 का मामला खत्म होता है। आर्टिकल 16 ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रिजर्वेशन को लेके कई केसेस आएंगे और उन इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए पार्लियामेंट के माध्यम से
अमेंडमेंट आएंगे, ठीक है। यस सर। और इसमें मंडल वगैरह हम कल पढ़ेंगे। तो आज 2 क्लास होनी थी, लेकिन एक ही क्लास हुई, लेकिन लंबी हो गई ताकि टॉपिक कवर हो जाए। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम यस 2 सर। क्लास इकट्ठा पढ़ेंगे जनरल डिफेंसेस। 2 क्लास हम इकट्ठा पढ़ेंगे जनरल डिफेंसेस। ओके। ओके सर। अच्छा नकुल, ये बताओ कि मैं अपलोड करना, जैसे मैं वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखी है, अपनी बनाई है, देखिए मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, तो पूरा का पूरा यूट्यूब का वो बन के नहीं आ रहा है, सिर्फ लिंक आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो पूरा का पूरा आता था। सर मुझे नहीं पता सर, इसलिए मैं जानता नहीं हूँ चीजें बहुत ज्यादा। मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा चलो नकुल, ठीक है फिर, मुझे लगता है आज क्लियर हो गई होंगी चीजें। यस सर। बाकी इसमें तो जितनी स्टडी खुद करोगे उतना फायदा है, ये तो बहुत डीप चीज है। यस सर। चलिए, यस सर। ओके नकुल, बाय। ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम।